episode of Election Yatra, the Bihar edition. As the battle heats up, we are taking you through the state of Bihar to know the pulse of the people. We will take you through the strongholds and bastions of political parties as well as the bellwether seats. We're right now headed to Vaishali district, which is part of the Tirhut division. It has 8 assembly constituencies. It also includes some high-profile seats. Raghopur, which is the bastion of Tejashwi Yadav, and Hajipur, which of course is known for the legacy of late Ram Vilas Paswan. Hajipur is also the largest city of Vaishali district, and it is the second fastest developing city after Patna. Let's go to Hajipur. Join us on this journey to find out what's the mood on ground. Hajipur is also known for its sweet bananas, the Chinia variety, which is exported across different states in India. The farmers are awaiting a GI tag after the initial approval that they have received. So for the farmers, even that is a poll issue. Politically speaking, Hajipur is of course associated with the legacy of late Ram Vilas Paswan, who represented the Lok Sabha seat of Hajipur for many years, and now the mantle of course has been picked up by his son Chirag Paswan, who's an MP from the Hajipur Lok Sabha seat as well as a minister, union minister in the Modi government. But the dynamics here is a bit complex. So while the Hajipur Lok Sabha seat is a reserved seat, the Hajipur Assembly constituency is a general seat. Over the years, Hajipur Assembly seat has become the stronghold of the Bharatiya Janata Party. But the victory margin has been declining with each election. Many people believe this time around it will be a closely contested battle between the BJP and the RJD. Hajipur, it's really hot here. So this is a quick stop that we've taken for some sugarcane juice. Let's also utilize this opportunity to talk to the locals here. Let's ask them what's their mood. Mood क्या है ग्राउंड पर? किसकी हवा है? क्या माहौल है चुनाव का? हवा हम 20 साल से देख रहे हैं. मेरा उम्र 22 साल 24 साल है. 20 साल से देख रहे हैं चचा को, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर. हम चाह रहे हैं कि युवा का नेता बनो, तेजस्वी बने और 5 साल इनके भी मौका दे और देखे कि ये क्या कर रहे हैं. ये हमको लग रहा है कि युवा के हित में बहुत अच्छा ही होगा कि तेजस्वी सरकार आए और सबको सब चीज तेजस्वी जो है, जो एक ही बात करता है, रोजगार, नौकरी, यही चीज का बातें होता है. और तो ये एनडीए क्या बात करी? अभी जो इधर पे एमएलए उन्होंने कुछ काम नहीं किया हाजीपुर? बस अभी तो इलेक्शन आया है तो यहाँ मिलेगा इतना 100 करोड़, वहाँ मिलेगा इतना 100 करोड़. बस इलेक्शन 5 सालों में कुछ नहीं किया. 5 साल क्या, 20 साल में कुछ नहीं किया. 20 साल में हम कुछ नहीं देखे. बस इतना ही बोलना चाहिए. आपको क्या लगता है, क्या क्या माहौल है? माहौल वही है जो कि बदलाव की ओर है, और हर कोई चाहता है, एक युवा भी चाहता है कि अपने भविष्य के लिए बात करें, एक रोजगार के लिए बात करें. तो इस बार मूड जो कि है युवा से लेकर के हर कोई बूढ़े बच्चे सभी मूड बना चुके हैं कि एक बदलाव चाहिए और एक युवा के हाथ में उसको सरकार चाहिए. तो पूरे एक रोजगार की बात हो रहा है जो कि हमारे तेजस्वी यादव कर रहे हैं, एक मुद्दे की बात कर रहे हैं. तो एक बात बताइए, आरजेडी का चाहे जो भी उम्मीदवार हो, आप वोट तेजस्वी के नाम पर देंगे? बिल्कुल, एक तेजस्वी के नाम पर नहीं, एक रोजगार के नाम पर देंगे जो कि बदलना चाह रहे हैं, जो बिहार को आगे लेके जाना है. जो छोटे बच्चे हमारे जैसे युवा हैं उनको भविष्य बदलना चाह रहे हैं. जो 17 महीने में वो काम करके दिखाए हैं, उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि एक युवा के हाथ में जाए और एक रोजगार की ओर बढ़े और एक विकसित बिहार बनाए. तो केवल हाजीपुर नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी प्रसाद. आरजेडी के सपोर्टर? जी बिल्कुल. तेजस्वी सरकार. यादव है क्या? नहीं, यादव नहीं है. ये कोई फैक्टर नहीं, ये कोई फैक्टर है क्योंकि चुनाव में ये फैक्टर होता है, इसीलिए पूछ रही है. कोई फैक्टर है तो फिर जातिगत बात हो गई ना. हम मतलब ना हम यादव है ना कुछ है, वो तो अलग की बात हो गई. लेकिन यहाँ सरकार चुनने की बात है तो इस बार तेजस्वी सरकार. क्यों तेजस्वी? क्यों तेजस्वी? क्योंकि ये यंग है, युवा हैं, उनकी सोच नहीं है. जो काम करेंगे वो युवाओं के लिए करेंगे, बिहार को एक अच्छी दिशा में लेके जाएंगे. क्योंकि सरकार, और वैसे भी मानना है कि सरकार हमेशा बदलना चाहिए. आप लोग कह रहे हैं रोजगार की बात होती है. एक बात और हुई, जब राहुल गांधी आए तो वोट चोरी का खूब बात हुआ कि लोगों का नाम काट दिया है जानबूझ के, और वोट चोरी बड़ा मुद्दा है. बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा.
बहुत बड़ा मुद्दा। यहाँ तक कि पीछे के चुनाव के बारे में हम अभी क्या 5 साल पीछे के बात करें, जो आदमी जीता हुआ है उसको डरा धमका के हरा दिया, ये होता है। जनता का वोट चोरी हो रहा है क्या हाजीपुर में? हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? अगर ऐसे चाह रहे हैं कि 2024 में जो इलेक्शन हुआ उसी से तो मेरा प्रधानमंत्री बना, तो उस समय उस समय वही वोटर ने आपको वोट किया, तो इस समय क्यों नहीं कर सकता है? तो इससे तो साबित हो सकता है कि अपने वोट चोरी करके बनाते हैं। Well, these people believe that in Hajipur, the mood on the ground, the sentiment on the ground is in favor of Tejasvi Yadav, the RJD. Many, in fact, would vote, irrespective of who the candidate is, only for the RJD, for Tejasvi Yadav. We'll find out what happens during elections. Let's go ahead, let's talk to more people. Hajipur is predominantly a rural constituency with 67% of its voters living in the rural areas. So we decided to traverse through the lanes and by-lanes of the villages of Hajipur to find out what's the real sentiment here on ground. यहाँ हाजीपुर में और खासतौर पर आपके गांव में चुनाव का क्या माहौल है? अच्छा है माहौल, अच्छा है। पुराना है जो उसी को वोट देंगे, जो है उसी सुख सुविधा दे रहा है उसी को देंगे वोट। ये सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए बदलाव की कोई जरूरी नहीं, कहीं से ही कोई बदलाव की जरूरी नहीं है। तो जो विरोधी है वो कह रहे हैं कि जो विक्ट्री मार्जिन होता है वो साल दर साल गिर रहा है, नहीं। जो मौजूदा पार्टी है यहाँ पर, और वो दिखाता है कि लोगों में गुस्सा है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, वो सब गलत अथी है, अफवाह है, सब अफवाह है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी अलायंस आ रही है, एनडीए सरकार फिर बन रही है और बहुत पूर्ण बहुमत से बन रही है। किसके चुनावी वादों पर आपको यकीन है, क्या होगा हाजीपुर में? बस मोदी पर यकीन है, हम लोगों को मोदी पर यकीन है, हम लोग बीजेपी के समर्थक। क्यों, बीजेपी ने काम किया है यहाँ पे? बहुत काम किया है, सब काम, रोड बनाया है, बिजली फ्री किया हुआ है, सब जीविका का 10,000 रुपया दिया है, छात्रवृत्ति में 2 बार किया है, सब चीज मिला है, सब साधन मिला। आप खुश हैं बीजेपी के काम से कि आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? बीजेपी के हम कैडर ही हैं, अच्छा। इसीलिए हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन खुश रहेगा। हाँ, शुरू से ही हम मतलब हैं। और जी गरीब नित्यानंद जी यहाँ थे, विधायक थे, उन्हीं के संपर्क में हम और उन्हीं के मतलब व्यवहार से हम उसमें हम जुड़े हुए हैं और आज तक हम मतलब जुड़े हुए हैं। तो हाजीपुर के सारे मसले हल हो गए हैं क्या? सारे मसले तो हल नहीं हुए हैं, लेकिन अधिकांश मसले हल हो गए हैं। जैसे रोड, बिजली, पानी, ये सब गांव वाले को क्या चाहिए, रोड, बिजली, पानी, तो ये सब मिल रहा है सुविधा। तो जो मौजूदा हालात है और जो मौजूदा सत्ता है उससे आप भी खुश हैं? आपकी क्या राय है? कहीं कोई कमी नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा खुश हैं। और आरजेडी का बुरा शासन झेल चुके हैं, देख चुके हैं, कुछ अपनों को खो चुके हैं, इसलिए ये बहुत ही बढ़िया है ये शासन। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम रोजगार देंगे, युवाओं को अपील कर रहे हैं। वो आपको लगता है कोई कनेक्ट उनका बैठेगा युवाओं के साथ? जवाब देते हैं। अब अगर मेरे पास प्रॉपर्टी होगा तभी तो नौकरी देंगे ना। अरे जमीन हम देंगे उनको तब ना वो हमारा नौकरी देंगे। बगैर जमीन का तो वो नौकरी किसी को बांटे नहीं है आज तक, न बांटेंगे। पिता के पुत्र है ना। तो जो मोदी सरकार कहती है कि एक जंगल राज था जिसको हमने हटा दिया, ये सच्चाई है। 15 साल हम लोग वो झेला है, जो 7 बजे के बाद हम लोग बाहर नहीं जाते थे, हमारे बीवी बच्चे बाहर नहीं जाते थे और चिंता बनी रहती थी। तो कम से कम बीजेपी, नीतीश मिलकर के इस जंगल राज को तो समाप्त जरूर ही किया, साथ साथ विकास भी हुआ और अभी हम लोग खुश है। थोड़ा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता तो और अच्छी बात है। बच्चे हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, फिर ये बीपीएससी का निकलने वाला था वो सब निकलता तो बहुत अच्छी बात है। तेजस्वी जो जगह जगह राहुल के साथ दिख रहे हैं, आपको लगता है कि गलती तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि राहुल और मामला बिगाड़ रहे हैं, पहले से बिगड़ा हुआ था? अच्छा एक बात बताइए, अगर मेरे घर में कोई बाहरी आदमी आकर के जबरदस्ती रहना चाहेगा, क्या हम उसको सदस्यता के लिस्ट में नाम जोड़ लेंगे क्या? अगर कोई बांग्लादेश से आया, कोई रोहिंग्या कहीं से बाहर से आकर के बस गया, अब उसका नाम जोड़ने और काटने पर ये राहुल गांधी या तेजस्वी यादव तमाशा कर रहे हैं, तो वो तमाशा अनपढ़ गवार नीतीश जी और मोदी जी सबसे बड़ा काम किए हैं। सरकार नहीं आरजेडी का आने का बस एक कारण,
नीतीश जी और मोदी जी हर परिवार को शिक्षित बना दिए, हर व्यक्ति को शिक्षित बना दिए। और शिक्षित व्यक्ति समझ रहा है मेरा नाम कटा है, नहीं कटा है, जमील चाचा का नाम कटा है, नहीं कटा है। कारण है हम लोग यहाँ के वासी हैं, यहाँ जन्म लिए हैं, हमारे पूर्वज यहाँ रहे हैं। अब जो रोहिंग्या आकर के बस जाएगा, जो बांग्लादेशी आकर के बस जाएगा, तो स्वाभाविक है किसी का सरकार रहेगा, अगर निष्पक्ष सरकार चलावेगा वो नाम कटवे करेगा। नीतीश कुमार एज द चीफ मिनिस्टर आप चाहते हैं वही कंटिन्यू करें, और आपकी राय में ग्राउंड सेंटिमेंट किसकी तरफ, झुकाव कहाँ है? Nitish Kumar is good. No doubt he is good, and he has done very well in his past time also. He has done very well, but age is also one of the factor. But whatever the party will decide, we are with party. We are with party. So the verdict at least here seems to be in favor of the double engine ki sarkar over the Mahagathbandhan. What is going to happen? For that we'll have to wait and watch if this ground sentiment is going to continue till the voting date or not. We are now joined by the sitting MLA of the Hajipur Assembly constituency. Let's talk to him about the sentiment on ground about the issues here in Hajipur. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। 2014 में बाय इलेक्शन के जरिए सबसे पहले आपका चुनाव हुआ था हाजीपुर में, और उसके बाद से लगातार आप रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, अपनी पार्टी को यहाँ से। तो इस बार आपको लगता है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर है? क्योंकि अक्सर चुनाव में जब एक लंबा समय आप सत्ता में रहते हैं तो ये डर पॉलिटिकल पार्टीज को सताता है। यह बात सही है कि लंबे समय से पॉलिटिकली अगर कोई सिटिंग एमएलए है, एमपी है, तो एंटी इनकम्बेंसी की बात आती है। लेकिन चूंकि हाजीपुर 2000 से ही यहाँ हम लोग के नेता आदरणीय नित्यानंद राय जी यहाँ से विधायक होते थे, और फिर 2014, 2015 और 2020 में हम यहाँ से निर्वाचित हुए हैं। तो चूंकि हम लोग लगातार लोग के संपर्क में रहते हैं, कहीं अलग रहते नहीं हैं, और घर पर ही मिलना जैसे पहले मिलते थे, फिर अपना विधायक कार्यालय जो शहर के बीचों बीच है, तो संपर्क में लगातार है। तो हमको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी की वैसी कोई स्थिति हाजीपुर में नहीं होगी। आपके जो विरोधी हैं, महागठबंधन की मैं बात कर रही हूँ, वो इस बार चुनाव में वोट चोरी की बात करें। राहुल गांधी ने एक पूरी यात्रा निकाली, वोट चोरी उनके हिसाब से बड़ा फैक्टर है। आपको लग रहा है कि जब आप अपने लोगों से मिलते हैं, वोटर्स से मिलते हैं, तो वोट चोरी का कोई जिक्र, कोई असर, कोई प्रभाव? वोट चोरी का जो वो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो जो वाकई देश के नागरिक हैं, लोकतंत्र है, तो जो यहाँ के निवासी हैं, जो देश के हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, उनके मन में है कि होना चाहिए और बार बार होना चाहिए ऐसा। यार कोई भी गलत अगर नाम दर्ज हो गया है मतदाता सूची में, तो उन नामों को कटना चाहिए। कहीं जो आम लोग हैं उसमें कहीं नाराजगी नहीं है, लोग को अच्छा लग रहा है। और होता है कि कई लोग तो हम लोग से बताते हैं कि विधायक जी अगर गड़बड़ी से कहीं कोई नाम जुड़ गया है तो वह नाम कटना ही चाहिए। लोग में नाराजगी नहीं, लोग में खुशी है कि जो भी हिंदुस्तान के रहने वाले, जो भी भारत के रहने वाले हैं, उनका नाम न कहीं कटा है न कटना है। ठीक है, तेजस्वी जी भी चूंकि माताजी पिताजी उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जो नीचे की समस्या कोई होगी, कोई मुद्दा होगा, कोई विषय होगा, कोई कठिनाई होगी, उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है। दोनों लोग ऊपर ही ऊपर, जो किसी ने कह दिया कान में वोट चोरी हो गया, अपना वोट नहीं खोज पाए थे मतदाता सूची में। तो अब पिछले अगर 2014 से लेके 2020 तक के चुनाव की बात करें, तो जो रिपोर्ट्स हैं, विक्ट्री मार्जिन थोड़ा कम हुआ है। इस बार विक्ट्री मार्जिन बढ़ेगा, और फैक्टर क्या रहेगा अगर ऐसा हुआ तो? हमको लगता है कि आप हाजीपुर के बारे में पूछ रहे हैं। सही बात है, पिछली बार चूंकि कई कारण था। एक तो एलजेपी से हमारा एनडीए का गठबंधन नहीं था, एलजेपी कहीं अलग लड़ रही थी, कहीं नहीं लड़ रही थी, वह कंफ्यूजन हुआ जो एलजेपी के वोटर हैं। बाकी कई फैक्टर्स थे, कई अपने लोग जो पार्टी में रह करके भी कैंडिडेट हो गए थे, तो उस कारण मार्जिन यहाँ का घटा था। और इस बार एलजेपी यार साथ में है, तो निश्चित तौर पर मार्जिन बढ़ेगा और अच्छे मार्जिन से हाजीपुर हम लोग जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट आपको।
Whether it's the Mahagathbandhan or the NDA alliance, as of now, as you watch this episode, they've not been able to come up with their list. So the negotiation, the bargaining, all still happening. Emergency meetings, high-level meetings taking place to finalize the seat sharing and the candidate list. Let's talk about the Hajipur Assembly constituency and the Paswan factor. Remember, in 2020, Chirag Paswan was not with the NDA. He contested alone and managed to win just one seat. But then in 2024, we saw the LJP Chirag Paswan completely dominating the scene during Lok Sabha elections. This time around, he is very much with the NDA alliance. Will there be an impact? Is he going to be an important, crucial factor in the Hajipur Vidhan Sabha as well? Remains to be seen. We are in Hajipur, where the Paswan community plays a very key role. You can say that they are the deciding factor. Let's speak to them about what's happening in Delhi in terms of the negotiations that are taking place and what will be their impact on the upcoming elections, Bihar elections 2025. ये जो दिल्ली में बातचीत चल रही है, आप लोग देख रहे हैं एलजेपी और एनडीए की बीच सीटों को लेकर के, नजर बनी है आपकी इस पर? जी जी जी। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? अच्छा होगा, सब लोग साथ में हैं, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी है, हम हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, एनडीए है, जदयू, सब लोग मिलकर लड़ेंगे चुनाव। तो चिराग पासवान कितना बड़ा फैक्टर है? चिराग पासवान जी का बहुत बड़ा फैक्टर है और चिराग पासवान जी जहाँ रहेंगे वहाँ पासवान का वोट एक तरफा जाएगा। वहाँ पिछली बार 2020 में चिराग पासवान लड़े थे, अकेले लड़े थे, तो केवल एक सीट आया था, तो फिर तब वोट बैंक कहाँ था? उस समय उतना चिराग जी को माने नए नए आए थे राजनीतिक में, यही बड़ा फैक्ट था। लेकिन अब वो राजनीतिक से परिपूर्ण हो गए हैं और पिताजी का उनका आशीर्वाद है और अच्छे हैं और अच्छे ढंग से वो अपना सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। अच्छे रहे। Let's also talk to some of the females here. Let's see what they have to say about the Paswan factor, about the Chirag factor in the elections. आप लोगों को क्या लग रहा है, इलेक्शन का क्या माहौल है इस बार? माहौल ठीक है, माहौल ठीक है, बढ़िया है। यहाँ चिराग के पासवान के सब वोट देंगे। यहाँ पर चिराग के पासवान का थी है, यहाँ बहुत चिराग के पास बहुत किए है बिहार के लिए। चिराग के पासवान यहाँ जीतेंगे। तो चिराग पासवान जहाँ रहेंगे आप लोगों का वोट वहीं पड़ेगा? उनके हम पति देंगे। अपनी डॉक्टर वीडियो कन्हावती जाए, फ्री में इलाज चल रहा है। पटना में जा रहे हैं तो फ्री में जांच, फ्री में इलाज हो रहा है पूरा। पटना में जाते हैं तो कहूँ जाते हैं तो फ्री में इलाज हो रहा है। चिराग पासवान, मोदी सरकार तो हमारे आदमी, जहाँ कमल छाप मिला है उनको वोट देना है। For people of the Paswan community, Chirag is the biggest factor. Irrespective of the issues, irrespective of who the candidate is, for them, Chirag is the big factor. जहाँ चिराग पासवान, वहाँ पासवान community का वोट. That's the message coming out after having a conversation with people of this community. That's all we could pack for you in this edition of the Hajipur episode. आगे चलिए देखते हैं रास्ता कहाँ लेकर जाता है. We'll see you tomorrow, same time, election yatra, Bihar edition, only on Times Now.